دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 23 پیشکش میرے کارواں۔ ہم آگے پیچھے سفر کرتے ہوئے فرید پاشا کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ کوٹھی پر امن و امان کی صورتحال نے ہمارا استقبال کیا۔ مستد سیکیورٹی گارڈ عمر دین اپنی ڈیوٹی پر محسوس کیبن میں موجود تھا۔ اس نے ہمیں سب ٹھیک ہے کا سگنل دیا۔ ہم گاڑیوں کو گراج میں پہنچا کر کوٹھی کے اندر آگے۔ اس وقت رات کے 3:30 بجے تھے۔ ہمارے پاس 2.5-3 گھنٹے کا وقت تھا۔ اس دوران میں ہمیں نیند لینا تھی اور آرام کرنا تھا۔ میں نے اللہ دیتا سے پوچھا، زرگل سو گئی یا ابھی تک جاگ رہی ہے؟ صاحب جی، ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ دونوں جاگ رہی ہیں۔ صاحب جی، ان حالات میں کون سو سکتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ دونوں جاگ رہی ہیں۔ میں نے تحسین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اور زرگل کو باہر بھیج دو۔ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں مزید ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا۔ اسے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی۔ زرگل ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اللہ دیتا نے پوچھا کہ وجدان صاحب، اب تو چائے چلے گی نا؟ میں نے کہا، رہنے دو، تم بھی تھوڑا آرام کر لو، کل صبح ہمیں چلنا ہے۔ کیا حالات پیش آئیں گے؟ تمہیں ہمارے ساتھ سید پور بھی جانا ہے۔ میں بھی ایک ہلکی سی نیند لینا چاہتا ہوں۔ اللہ دیتا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر اپنے کوارٹر کی جانب جانے لگا تو اس نے کہا، آپ لوگ جہاں اور جس طرح چاہیں آرام کریں۔ 2 بیڈ روم زیریں منزل پر بالکل تیار حالت میں حالی ہیں اور باقی 3 بالائی منزل پر ہیں۔ میں نے آپ کی غیر موجودگی میں کمرہ وغیرہ اور کمرے کی ضرورت کی ہر چیز وہاں سیٹ کر دی ہے۔ اللہ دیتا رخصت ہوا تو میں صدف اور زرگل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے باری باری انہیں دیکھا اور کہا کہ میں تو یہی ڈرائنگ روم میں صوفے پر کمر سیدھی کر لوں گا۔ تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے تو بالکل نیند نہیں آ رہی، صدف نے کہا۔ دراصل میں نے دن میں یہاں سے جانے کے بعد ایک بھرپور نیند لے لی تھی۔ زرگل نے کہا، وجدان تم جانتے ہو کہ میں کس قسم کے حالات سے گزر رہی ہوں۔ میری نیند بھی اوچاٹ ہو گئی ہے، لہذا صبح تک جاگنا ہی ہوگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں سونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ایک مرتبہ میں نے پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، نیند نہ بھی آئے پھر بھی آرام بہت ضروری ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ زیریں منزل والے دونوں بیڈ روم تم سنبھالو، میں یہاں ڈرائنگ روم میں موجود ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دفعہ انہوں نے بڑی ہی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور یکے بعد دیگر ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کمروں کی طرف چلی گئیں۔ زرگل کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں اس وقت قصے کہانیوں کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی داستان صبح بھی سنی جا سکتی تھی۔ کل کے حالات کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پوری طرح چاقو چبند رہنے کے لیے تھوڑی سی نیند از حد ضروری تھی۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگرچہ مجھے کوئی خاص نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی مجھے سونا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میرا دھیان فرید پاشا کی طرف چلا گیا۔ فرید ایک مخلص اور سچا جانثار دوست ثابت ہو رہا تھا، لیکن میری وجہ سے وہ بیچارہ اچانک مشکلات میں گھر گیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے باپ کے انتقال میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اس کی دیگر مصیبتیں میرے ہی سبب تھیں۔ سکندر اور رانا عظمت کی دشمنی ہی کیا کم تھی جو منشا کا سلسلہ بھی نکل آیا۔ یہ سلسلہ اگر دراز ہو جاتا تو بات چودھری دلدار تک پہنچ سکتی تھی، اور یہ سب کچھ میری موجودگی کی وجہ سے تھا۔ اگر میں پاشا کا مہمان نہ ہوتا تو وہ اس قسم کے سنگین حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ اسی تناظر میں سوچتے ہوئے میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے پہلی فرصت میں فرید پاشا سے دور ہونا چاہیے۔ دوستی دور رہ کر بھی تو نبھائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کی دوستی دوست کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو تو ایک فاصلہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں تو ایسا شخص تھا کہ حل پر دشمن میرے ہم رکاب رہتے تھے۔ مجھے ان کی عادت ہو گئی تھی اور ان سے نمٹنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ میں دشمن پیشہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا کہ کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور ساحل کو حاصل کرنے کے بعد میں فرید پاشا سے فاصلہ بڑھا لوں گا۔ ویسے بھی یہ کوٹھی اب میرے لیے زیادہ محفوظ پناہ گاہ نہیں رہی تھی۔ شعیب غوری میرے اس ٹھکانے سے واقف ہو چکا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے ابھی تک کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی۔ میرے خیال میں چودھری نوازش علی کے بعد وہ شخص میرا دشمن اول تھا۔ میں اسے اور وہ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شعیب یا اس کے بندے پنجے جھاڑ کر اس کوٹھی کا پیچھا کرتے، مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر مجھے شعیب غوری کی دھمکی یاد آ گئی۔ اسے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران میں بڑے سنگین الفاظ میں کہا تھا کہ میں نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ایک مستند اور کہنہ مشق سے رابطہ کر لیا ہے۔ وہ تمہاری ایسی نسبندی کرے گا کہ پھر تم ساری زندگی صف بندی کے قابل نہ رہو گے۔ شعیب غوری کوئی غیر سنجیدہ یا کمزور شخص نہیں تھا۔
कि मैं उसकी वार्निंग को कोई हाली हुली धमकी समझता। वो एक फाल तंजीम CFK का बास था और यहूदी लाबी उसकी पीठ ठोंक रही थी। वो बहुत ही खतरनाक और सफाक शख्स था जो किसी लम्हे कुछ भी कर सकता था। मैंने उसकी सफाकी का मुजाहरा अपने 3 साथियों की भयानक मौत की सूरत में देखा था। शुएब गौरी के बारे में सोचते हुए मेरा ख्याल मंशा की तरफ चला गया था। कहीं ये मंशा ही वो कसाई तो नहीं जिसका जिक्र गौरी ने किया है। शुएब का लाहौर में नेटवर्क नहीं था, लेकिन ये ऐन मुमकिन था कि उसने मेरी सरकोबी के लिए मंशा जैसे शख्स से गठजोड़ कर लिया हो। सिकंदर और मंशा का रब सब भी यही जाहिर करता था कि उन्हें मेरी तलाश थी। क्या ये तलाश शुएब गौरी की फरमाइश पर शुरू की गई थी? मैं अब तक यही सोच रहा था कि मंशा और चौधरी दिलदार का ताल्लुक चौधरी नवाजिश अली से होगा। अब नजर आ रहा था कि ये सारा मामला और ये सारा खेल शुएब गौरी की तरफ से भी हो सकता है। इन हालात में फरीद पाशा को किसी वबाल से बचाने के लिए जरूरी था कि मैं फौरी तौर पर उससे किनारा कश हो जाऊं, चाहे आर्जी तौर पर ही सही। इस कोठी का रास्ता मेरे इतने दुश्मनों ने देख लिया था कि उसकी जिंदगी अजीरन होकर रह जाती। इन्हीं दुश्मनों में वो बहरूपिया भी शामिल था, नकली वजदान। मैं उस शख्स के बारे में अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं कर पाया था और ये फैसला करना आसान भी नहीं था कि वो मेरा दुश्मन है या दोस्त। अगर डार्लिंग वाले बॉक्स में जो तयशुदा पर्चा बरामद हुआ था उसे तो यही जाहिर होता था कि वो मेरा हैरहा है। डार्लिंग से मुझे बचाने के लिए उसने बिल्ली को ज़बह कर डाला था। उसका ख्याल था कोई बदरू डार्लिंग के अंदर घुस आई थी जो मुझे शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने वाली थी। माजी में बद्दी की कुव्वतों से मुझे कदम कदम पर वास्ता पड़ता रहा है। ये भी मुमकिन था कि ताकुब का सिलसिला अभी मौकूफ ना हुआ हो और मेरी दुश्मन पुरस्रार कुव्वतों की बाकियात डार्लिंग को वसीला बनाकर मुझ तक पहुंच गई हो। डार्लिंग ने मुतअद्दिद मौके पर मेरी मदद की थी, इसलिए उसकी मौत का मुझे बहुत ज्यादा गम था। अगर बहरूपिया वजदान का कहना दुरुस्त है तो फिर मैं यही कहूंगा कि डार्लिंग ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुझे एक मरतबा फिर महफूज कर दिया था। अफसोस सिर्फ इस बात का था कि मैं डार्लिंग के लिए कुछ नहीं कर पाया था। फिर उस रात का मंजर मेरी निगाह में गुम गया जब मैंने उसकी असलियत जानने के लिए उस पर तनवीमी अमल किया था। उस तनवीमी अमल में चीका बगार भी शामिल था, लेकिन ऐन आखिरी लम्हात में जबकि मैं डार्लिंग का राज पाने ही वाला था कि फरीद पाशा की बीवी नायला की दिलहराज चीख ने सबको तबाह कर दिया। मैं इंग्लिश फिल्म गोल्डमैन के हीरो डेंजर से मुशाबा 3 अफराद से निपटने के लिए हर शय को फरामोश करके नायला की तरफ दौड़ पड़ा था। अगर उस वक्त मुझे चंद लम्हात की मोहलत मिल गई होती तो मुमकिन है मैं डार्लिंग की असलियत को पा लेता। वो किसी बदी की कुव्वत के ज़ेरे असर थी या नेकी की कुव्वत के, उसके अंदर कार फरमा थी, इसका फैसला हो जाता। बहरहाल इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि डार्लिंग एक हैरत अंगेज और पुरस्कार बिल्ली थी। मैं अपनी जिंदगी में आने वाले इस किरदार को कभी फरामोश नहीं कर सकता था। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिलो दिमाग में एक मोहसिन की हैसियत से नक्श होकर रह गई थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा। आवाज सरगोशियाना और वाजिया थी। मैंने बेख्तियार आंखें खोल दी और ड्राइंग रूम में नजर दौड़ाने लगा। मेरी मुतलाशी नजर को नाकामी हुई। ड्राइंग रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे शदीद हैरत हुई। क्या मेरी समात को धोखा हुआ था? मैं बेचैन हो गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने बड़े ही खुले और वाज़ेह अल्फाज में ये नाम सुना था। किसी ने मुझे पुकारा था, लेकिन किसी मुतनफ्फिस के यहाँ आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने आंखें बंद करने से पहले ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ नहीं की थी। ये भी मुमकिन नहीं था कि मुझे पुकारने वाला आवाज देकर कहीं छुप गया हो। मैंने अपना नाम सुनते ही आंखें खोल दी थी। मैं तशवीशनाक अंदाज में बड़ी ही सूरत से सोचने लगा, मेरी समात को बार बार धोखा क्यों हो रहा था। फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी के सहन में भी मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने कदमों की बाकायदा आवाज सुनी थी, लेकिन सदफ ने उसे मेरा वहम करार देकर बात खत्म कर दी। इससे कबल निशान पेट्रोल को पुश देते वक्त भी मैंने जो कुछ महसूस किया वो नाकाबिले फहम और हैरत अंगेज था। तो क्या कोई कुव्वत मेरी हमसफर बन चुकी थी? ये कुव्वत नेकी की थी या बदी की? इसका फैसला करना नामुमकिन नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने जाती तौर पर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और ना ही फायदा। अलबत्ता एक बात पूरे वसूख से कही जा सकती थी कि मेरे साथ कोई पुरस्कार मामला शुरू हो चुका था, जिसे मैं फिलहाल समझ नहीं पा रहा था। पुरस्कारियत के हवाले से मेरा ध्यान एक लम्हे के लिए नीलगिरी की तरफ भी गया। पिछले कई रोज से वो गायब थी। आखिरी ख्वाबनाक मुलाकात में उसने बड़े ही गरूर से दावा किया था कि अब वो कभी भी मेरी तरफ नहीं आएगी, बल्कि मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी। मुझे हमालिया की गोद में उसके मस्तक तक जाना होगा और हर हाल में जाना होगा। ये मुमकिन भी था क्योंकि नीलगिरी ने अपनी किसी पुरस्कार कार्रवाई का आगाज कर दिया हो। नीलगिरी की 2 ख्वाहिशें मैंने नोट की थी।
एक मेरा हसूल और दूसरे मुझे साहिल से दूर करना। वो अपने मकासद में जुज़वी तौर पर कामयाब रही थी। साहिल का अगवा और लैला वाले बंगले में पेश आने वाले वाकयात इसी सिलसिले की कड़ियां थी। सुरमा बदन लैला के जुलूम में उसने जो कार्रवाई दिखाई थी, मैं अभी तक उसके शहर में था। दीवार गिर क्लार्क ने सुबह के 4 बजने का ऐलान कर दिया तो मैंने इन ख्यालात को जहन से झटक दिया और सोने के लिए खुद को हदायत देने लगा। मैं नहायत ही पुरसुकून मीठी और गहरी नींद सोऊंगा और ठीक 7 बजे मेरी आंख हशाश बशाश खुल जाएगी। लेकिन मेरी इस नींद के दौरान में अगर इस कोठी की हदूद में कोई गैर मामूली या संगीन वाक़या पेश आने की तवक्का या आसार नमूदार हुए तो वक्त मुकर्रर से पहले ही मेरी आंख फौरन खुल जाएगी और आइंदा चंद लम्हों में मैं नींद की मेहरबान आगोश में सर रख चुका था। अमली लोग बहुत कम ख्वाब देखते हैं, इन्हें अमल ही से फुर्सत नहीं मिलती। थक हार कर सोने के लिए अगरचे कुछ वक्त मुयस्सर आता है तो वो ऐसा बेखबर सोते हैं कि फिर अगले दिन ही खबर को लाते हैं। मेरी सारी जिंदगी प्रैक्टिकल गुजरी थी, इसलिए मुझे बहुत कम ख्वाब देखने का मौका मिला और मैंने जो भी ख्वाब देखा वो लायानी और बेमानी कभी नहीं रहा। उस रात मैं लगभग 4 बजे सोया था। ये रात नहीं बल्कि सुबह ही थी। मैंने सुबह 7 बजे तक सोने के लिए जहन को हदायत दी थी, लेकिन 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई। जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि मैं पूरे बदन से पसीने में नहाया हुआ हूँ। ये मजीद हैरत की बात थी। एक ठंडी ठार रात में पसीना हदायत के खिलाफ कबल अज वक्त आंख खुल जाना यही जाहिर कर रहा था कि इस कोठी में कोई गैर मामूली वाकया हो चुका है या होने जा रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैं एक अनोखा ख्वाब देख रहा था कि अचानक आंख खुल गई। मैंने बाआहिस्तगी सोफा छोड़ा और ड्राइंग रूम का तनकीदी जायजा लिया। हर शय मामूल के मुताबिक और अपनी जगह पर थी। मैं उस तरफ से मुतमईन हो जाने के बाद ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। मोहतात कदमों से चलते हुए मैंने कोठी के अंदरूनी हिस्से को हर तरह झांक कर देख लिया था। हर जानब अमनो अमान की सूरत हाल थी। कोठी के अगबी हिस्से में सुकून था। गेट पर चौकीदार उमरदीन अलमारूफ बा सिक्योरिटी गार्ड मुस्तद खड़ा था। जब सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर मेरी आंख खिलाफे मामूल क्यों खुल गई? क्या मेरे दिमाग ने मुझे धोखा दिया था? ये मेरे लिए एक नाकाबिले यकीन बात थी। इसीलिए मेरा ध्यान लामहला उस अनोखे ख्वाब ही की तरफ चला गया। मैं वापस ड्राइंग रूम में आया और सोफे पर नींदराज होकर ख्वाब के बारे में सोचने लगा। नींद का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने जो ख्वाब देखा वो अपनी नौयत का मुनफरिद ख्वाब था। मैंने ख्वाब में खुद को देखा, यानी अपने अलावा वो खूबहू मैं ही था। वजदान और मैं और एक और वजदान मुख्तलिफ मनाज़र के किरदार अदा करने में मसरूफ थे। इस बात से मुझे हैरत या उलझन नहीं हो रही थी। मैं ख्वाब में एक लम्हे के लिए भी नहीं चौंका कि जब वजदान मैं हूँ तो फिर दूसरा वजदान क्या माने रखता है? मेरे अलावा कोई और वजदान क्यों है? इस किस्म का कोई सवाल या एतराज ख्वाब में मेरे जहन में नहीं पैदा हुआ। ख्वाब के दौरान में दूसरा वजदान अचानक मेरे अंदर दाखिल होकर मेरे वजूद का हिस्सा बन गया तो उसी लम्हे मेरी आंख खुल गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि ख्वाब देखते वक्त एक लम्हे के लिए भी मुझे नकली वजदान का ख्याल नहीं आया था। वो यूं मेरे ख्वाब में दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरा ख्याल उसी की तरफ जा रहा था। मैंने जब संजीदगी से अपना तज्जिया किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि पिछले 8-10 घंटे उस बहरूपिये के हवाले से जो जो वाकयात पेश आए थे, शायद उन्हीं की ख्यालात मुझे ख्वाब में दिखाई दिए थे। मैंने इन तमाम ख्यालात को जहन से झटक दिया। उसी वक्त ड्राइंग रूम के नीमवा दरवाजे पर सदफ की सूरत नजर आई। वो किसी बिल्ली की मानद दबे कदमों से वहां पहुंची थी। मैंने उठकर बैठते हुए उससे कहा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। वो मेरे मुकाबले दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोली। पूछने लगी, अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे बेडरूम के सामने से गुजरे थे? हाँ, गुजरा था, मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। क्या तुमने मुझे देखा था? देखा तो नहीं, बस यूं महसूस हुआ जैसे वहां से तुम्हारा गुजर हुआ हो। मुझे इसके बयान पर शक हुआ। देखे बगैर वो इतने वसौक से किस तरह कह सकती थी कि गुजरने वाला मैं ही हूँ? मेरे अलावा तो कोई भी और हो सकता था। मैंने उसे घिसने की खातिर पूछा, क्या तुम्हें कोई पुरस्कार शक्ति हासिल हो गई है जो तुम बगैर देखे इतना दुरुस्त अंदाजा लगा लेती हो? ऐसी कोई बात नहीं, वो बात बनाते हुए बोली। मैंने एक अंदाजा लगाया जो इत्तेफाक से सच निकला। इसमें किसी शक्ति का कोई दखल नहीं। तुम वहां किसी वहम में मुब्तला ना हो। मैंने इस सिलसिले में सदफ से ज्यादा जिरा नहीं की। ये तो मुझे यकीन था कि उसने किसी न किसी तरह मुझे देख लिया होगा और अब मुझसे बात छुपा रही थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आज तो वहम डे है। फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी में भी मुझे वहम हुआ कि हमारे पीछे कोई आ रहा है और अब तुम भी मुझे किसी वहम में मुब्तला ना होने का मशवरा दे रही हो। वो अचानक बात बदलते हुए बोली, क्या तुम किसी खास काम से उठे थे? नहीं, कोई खास काम नहीं था। मैंने कहा, तुमने थोड़ी बहुत नींद ले ली?
मेरी तरह अभी तक जाग रहे हो। मैंने 1.5 घंटे की नींद ले ली है। मैंने उससे कहा, उसे मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा चाय का मूड हो तो मैं बना लाती हूँ। मैं तो इस वक्त ख्वाहिश महसूस कर रही हूँ। दरअसल मैं बेड टी लेने की आदी हूँ। मैंने कहा, अगर तुम्हें ख्वाहिश हो रही है और ये तुम्हारी आदत है तो तुम जरूर चाय बनाकर ले लो। मेरा तो इस वक्त कोई मूड नहीं हो रहा। अगर तुम नहीं पी रहे तो फिर क्या फायदा? वो बेपरवाही से बोली। मैंने सोचा था कि अगर तुम साथ दो तो फिर हिम्मत की जा सकती है। मैंने कहा, ये हिम्मत की नहीं बल्कि आदत की बात है। मेरा साथ देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है? तुम बेड टी लेने की आदी हो तो तुम्हें जरूर चाय लेना चाहिए। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। चाय पीने से या ना पीने से? मैंने मासूमियत से पूछा। तुम्हारा साथ देने से या ना देने से? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बेधड़क अंदाज में बोली। उसके अंदाज ने मेरे जहन में खतरे की घंटी बजा दी। मैंने पूछा, क्या ऐसी ही बात है? बिल्कुल ऐसी ही बात है, वो कतियत से बोली। फिर उठकर खड़ी होगी और कहा, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। हमारे दरमियान बड़े ही मुबहम अंदाज में बातचीत हो रही थी, लेकिन सदफ के तेवर मुझे बहुत दूर तक सोचने पर मजबूर कर रहे थे। और इसी दूरी में फरीद पाशा और मिन्हास बाकर के कहे हुए अल्फाज की बाज़गश भी शामिल थी। इन दो मर्दम शनास अफराद ने फतवा दिया था कि सदफ आगे चलकर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। इन हजरात की पेशगोई के पूरा होने के आसार दिखाई देना शुरू हो गए थे। सदफ बला की पुरएतमाद और बेबाक लड़की थी। उसे कोई बात कहने में दरेक महसूस नहीं होती थी। शायद ये उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का नतीजा था। सख्त और मुशक्कत वाली एक्सरसाइज ने उसकी नस्वानियत में कदरे कमी करके उसके अंदर मर्दानियत का सा अंदाज पैदा कर दिया था। वो बड़े धड़ल्ले से बात करती थी। थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में नमूदार हुई तो उसके हाथ में एक छोटी ट्रे भी थी जिसमें चाय की 2 प्यालियां रखी नजर आ रही थी। उसने ट्रे को मेज पर मेरे सामने रखा और एक प्याली उठा ली। मतलब यही था कि दूसरी प्याली मेरे लिए है। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैंने चाय की प्याली की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इस वक्त चाय की जरूरत महसूस नहीं हो रही। अगर मैंने ये प्याली मैदे के अंदर उतार ली तो मुझे फौरन नींद आना शुरू हो जाएगी। चाय और काफी मेरे लिए एपेटाइजर या स्लीपिंग पिल से कम नहीं है। छोड़ दो इन बातों को। वो बड़ी लगावत से बोली। मैं इतनी मेहनत से तैयार करके लाई हूँ। अपने मामूल को एक दिन के लिए तोड़ दोगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? वो सच कह रही थी। वाकई अगर मैं एक रोज बेड टी ले लेता तो इससे किसी किस्म की क़यामत सुगरा या कुबरा नहीं आ सकती थी। मैंने कंधे उचकाया और मेज पर रखी हुई ट्रे में से चाय उठा ली। शुक्रिया वजदान, वो गहरी संजीदगी से बोली, तुमने मेरा मान रख लिया। मैं खामोशी से चाय की चुस्कियां लेने लगा। सदफ ने पूछा, वजदान वैसे तुम्हारा रोजाना का क्या मामूल है? तुम सुबह उठकर नाश्ते से पहले क्या करते हो? मैं अलीउल सबा उठता हूँ और सबसे पहले योगा की चंद मशकें करता हूँ जिनमें ची की एडवांस मशकें भी शामिल है। मैंने बताया। उसके थोड़ी देर बाद मैं नाश्ता करता हूँ। वो जल्दी से बोली। ची के हवाले से याद आया कि जब हम फासलिया कॉलोनी वाली कोठी में थे और मैंने उस कुव्वत को हासिल करने के लिए तुम्हारी रहनुमाई वाली बात की थी तो बेसाख्ता तुमने चौंक कर कहा था कि उसे भी ये सब कुछ करने का शौक था। मैंने जब उससे के बारे में तुमसे पूछा तो तुमने मुझे टहलाने की कोशिश की। उस वक्त तो मैंने तुम पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, लेकिन अब जरूर पूछूंगी वो कौन है और अब कहाँ है? वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद फिर पूछने लगी और मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हारे लहजे की उदासी ने मुझे इतना तो बता दिया था कि वो हस्ती अब तुम्हारे साथ नहीं है और वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो गई है। या सदफ? उसकी बात खत्म होने से पहले ही मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। मेरी आवाज अच्छी खासी बुलंद थी और मेरी आवाज में अच्छा खासा जारहानापन पाया जाता था। इसे दीवानगी भी कहा जा सकता है। सदफ ने बात के एहतताम पर मोनस का सीगा इस्तेमाल करके तो साबित कर दिया था कि वो किसी लड़की के बारे में सोच रही है, लेकिन उसके अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए जुदा ने मेरे अंदरून को झंझोड़ कर रख दिया और गैर इरादी तौर पर मैं दीवानगी के अंदाज में गुर्राया था। सदफ को इतने जज्बाती और वहशियाना अंदाज में रोककर मैंने उसके ख्याल पर मोहरे सबूत भी लगा दी थी। वो बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए नदामत अमीज लहजे में बोली, वजदान सॉरी, खुदा न खास्ता मैं किसी जज्बाती और रूहानी सदमे से दोचार तुम्हें नहीं करना चाहती थी। बस एक बात रवानी में मेरी जुबान से फिसल गई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा और दोबारा चाय के साथ मसरूफ हो गया। सदफ ने फिर इस सिलसिले में मजीद कोई बात या मजीद कोई कुरैत नहीं की। वो समझ गई थी कि इस हस्ती से मेरा कोई जज्बाती ताल्लुक है जिसने मुझे बेइख्तियार कर दिया था। सदफ ने अभी तक उसका मुझसे नाम नहीं पूछा था, लेकिन साहिल का मामला मेरे लिए इतना नाजुक था कि मैंने उसे हास लिया
اور بے ساختہ رد عمل کا اظہار کر دیا۔ میں کبھی بھی اس کے لیے یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ساحل مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الفاظ بہت ہی سنگین تھے اور اپنے اندر موت کی صفا کے لیے ہوئے تھے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کوئی زیرو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اپنی عزیز ترین ہستی کی موت کا تصور یا ذکر کس طرح قلب اور روح پر آبلے ڈال دیتا ہے، اس بات کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے کسی کو چاہا ہو، کسی سے محبت کی ہو۔ ساحل میری چاہت تھی، میری محبت تھی، میں نے اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، خیال کی تنہائیوں اور وقت کی کٹھنائیوں سے گزر کر اس سے محبت کی تھی۔ میں اس کی ابدی جدائی کا تصور کیوں کر سکتا تھا؟ میں تو اس کی عارضی اور وقتی جدائی میں آبلا پا اس کے سراب کی جانب محو سفر تھا۔ ہمارے درمیان اچانک خاموشی نے ایک دبیز چادر تان لی۔ صدف منہ سے بولے اور نہ ہی میں نے زبان سے ایک لفظ ادا کیا۔ ہم اپنے اپنے خیالوں میں گم سر جھکائے وقفے سے چائے کی شیرینی اپنے لب سے انڈیلتے رہے اور تصور میں اپنے ٹارگٹ کو دیکھتے رہے۔ 6 اور 7 بجے کے درمیان گھر کے دیگر افراد بھی یکے بعد دیگرے بیدار ہو گئے۔ موسم کی مناسبت سے 7 بجے کے وقت کو علی الصبا کہا جا سکتا تھا۔ 7:30 بجے ہم سب ناشتے کی میز پر تھے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں زرگل کو لے کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس سے کھل کر بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ مصیبت زدہ پشتون دوشیزہ مجھے اپنی طویل داستان سنانا چاہتی تھی اور میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ منشا کی طرف سے پھر کسی اوچھی اور ناخوشگوار حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ دم سادے کیوں بیٹھا تھا۔ جمشید، عمران اور جلال کی واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آنے پر اسے فوراً ایکشن میں آ جانا چاہیے تھا۔ اس کا پہلا اور آخری نشانہ فرید پاشا کی کوٹھی ہی ہوتی۔ میں نے زرگل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب تک تم یہ بات تو اچھی طرح جان چکی ہوگی کہ چند لمحات کے بعد مجھے اپنے دوست فرید پاشا کے لیے گاؤں سید پور روانہ ہو جانا ہے۔ فی الحال میرے پاس تم سے تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو چند روز کے لیے اسی کوٹھی میں رک جاؤ، میں 2-3 روز میں واپس آ جاؤں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اندازہ لگایا، ویسے تو تمہارے لیے صرف ایک رات گزارنے کا مسئلہ تھا۔ تم نے کہا تھا کہ صبح تم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ گی۔ تم جہاں بھی جانا چاہو تمہیں باحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ بولو کیا کہتی ہو؟ جس طرح یہ طے تھا کہ صدف میرے ساتھ سید پور جائے گی، بالکل اسی طرح میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ زرگل کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ چند لمحے دزدیدہ نظر سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر گہری سنجیدگی سے بولی، فی الحال تو میرے سامنے کوئی متعین منزل نہیں ہے۔ حکمت یاد کے بڑوں سے میری جان محفوظ ہو چکی ہے۔ آئندہ لاہے عمل بہت سوچ سمجھ کر بنانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس قدر الجھی ہوئی ہوں کہ اس بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں سکی۔ میں نے حتمی انداز میں کہا، ٹھیک ہے، تم جب تک چاہو اس کوٹھی کی پناہ میں آرام کر سکتی ہو۔ اس دوران میں تمہیں سکون سے سوچنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ میری واپسی سے قبل اگر تم یہاں سے رخصت ہونا چاہو تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا، بلکہ تمہیں تمہارے بتائے ہوئے مقام پر حفاظت سے پہنچا دیا جائے گا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی وجدان، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چلو اسی بہانے مجھے تمہاری سنسنی خیز کہانی سننے کا موقع مل جائے گا، اور مجھے بھی۔ وہ جلدی سے بولی، میں بھی تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے اپنی کہانی سناؤ گے۔ میں نے کہا، تم بھول رہی ہو، میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ اگر کبھی فرصت ملی میں تمہیں اپنے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ وہ بولی، تم سید پور کے معاملات نمٹاؤ تو پھر میں فرصت کے لمحات میسر آ جائیں گے تو تم مجھے اپنے بارے میں بتا سکتے ہو۔ اس بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں نے اپنی سابق تجربے کی روشنی میں کہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاؤں۔ اللہ مالک ہے، میری صاف گوئی کے نتیجے میں اس نے صرف اتنا کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے سیکیورٹی گارڈ عمر دین اور پاشا کے اسسٹنٹ تحسین کو باری باری اپنے پاس بلا کر ضروری ہدایات دی، پھر اللہ دتا سے معلوماتی گفتگو کرنے لگا۔ اللہ دتا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے ہوش و حواس سے پہلی مرتبہ لاہور آیا ہوں، اس لیے اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں واقع گاؤں دیہات سے واقف نہیں ہوں۔ تو مختصر الفاظ میں ہمیں بتاؤ کہ یہاں سے سید پور جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اس وقت صدف بھی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اللہ دتا نے کہا کہ صاحب جی، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، پھر آپ کو راستوں کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اسے بر وقت اور اہم سوال کیا تو مجھے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا پڑا۔
वो फैसला जिसके बारे में मैंने अभी सदफ को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने अल्लाह दी तत को साथ ना ले जाने का फैसला किया था। इस कोठी पर उसका मौजूद रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। तहसीन, नाहिद और जरगुल का दर हकीकत इस कोठी से कोई ताल्लुक नहीं था, जबकि अल्लाह दी तत साल से इस कोठी का एक हिस्सा रहा था। वो वहां नमूदार होने वाली नाखुशगवार और हंगामी सूरत हाल से ज्यादा बेहतर तौर पर निमट सकता था। मैं और सदफ उसके बगैर सैयदपुर जा सकते थे। मैंने अल्लाह दी तत के सवाल के जवाब में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यही कोठी पर मौजूद रहो। पाशा साहब तो नाराज नहीं होंगे? उसने एक अनहोनी बात की। उन्होंने आपके साथ मुझे आने को कहा है। मैंने कहा मैं पाशा को समझा दूंगा। अगर आज रात वाला वाकया पेश ना आया होता तो मैं तुम्हें साथ लेकर जाता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कह तो ठीक रहे हैं साहब जी, बस तो फिर तुम मुझे सैयदपुर जाने वाले रास्ते के बारे में तफसीलन बता दो। तो वो बताने लगा, वजीदान साहब, गुलबर्ग से निकलकर आपको पहले नहर के साथ साथ सफर करना होगा। मियाँ मीर, धर्मपुरा और मुगलपुरा से होते हुए आप फतेहगढ़ पहुंच जाएंगे। मैंने पूछा, नहर के साथ साथ से तुम्हारी क्या मुराद है? केनाल बैंक रोड पर? जी हाँ, मैं केनाल बैंक रोड की ही बात कर रहा हूँ। वो असबात में सर हिलाते हुए बोला। उस सड़क पर चलते हुए आप नहर के मुखालिफ समत में सफर करेंगे, यानी जिधर से नहर आ रही हो आप उधर जाएंगे। फतेहगढ़ के बाद रास्ता थोड़ा पेचीदा है, उस रास्ते पर बहुत एहतियात से ड्राइविंग करना होगी। तुम इसकी फिक्र न करो, मैं पेचीदा रास्ते से निपट लूंगा। मैंने कहा, आगे बताओ। अल्लाह दत्ता ने मुझे फतेहगढ़ से सैयदपुर के रास्ते की तफसील बताई। फिर कहा कि सैयदपुर से आगे लगभग 5 किलोमीटर का फासले पर मौजा रखा वाली है। उसके बाद फिर पाक बहारत सरहद शुरू हो जाती है। सरहद के उस पार अमृतसर है। अल्लाह दिता ने तो मालूमात आम से अंदाज में मुझ तक पहुंचाई थी, लेकिन रखा वाले के जिक्र पर आपो आप मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। साहिल की याद ने मेरे सीने में एक खौफनाक अंगड़ाई ली थी। मेरी महबूबा रखा वाले के पास वाले इलाके में चौधरी नवाज़ अली की कैद में थी, और मैंने ये सारा खटराग साहिल के हसूल के लिए ही तो फैलाया था। उसके साथ ही मैं उस जालिम चौधरी से बरसों पहले का हिसाब भी तो करना चाहता था। इस कर्ज की चंद घड़ियां मेरे शानों पर धरी हुई थी। इस कर्ज की चंद गठरियां मेरे शानों पर धरी हुई थी, और सबसे बड़ी गठरी साहिल की थी, जो मुझे पहली फुर्सत में उतार फेंकना थी। हमारे दरमियान मजीद चंद मिनट तक जरूरी बातचीत होती रही। फिर अल्लाह दित्ता ने पूछा, आप कौन सी गाड़ी लेकर जाना पसंद करेंगे? निसान पेट्रोल एक मर्तबा धोखा दे चुकी है, मैं उसे साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। हालांकि बाद अज़ां ये साबित हो गया था कि उस जीप में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं हुई थी, लेकिन ये गुत्थी सुलझाना अभी बाकी थी। मैंने कहा, हम यहाँ से टोटा करोला में जाएंगे। साहब जी, वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि गांव देहात के रास्ते में जीप ज्यादा मौजूद रहेगी। अल्लाह दिता ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा। उसकी तजवीज में अगरचे वजन था, ताहम मैंने उससे पूछा कि सैयदपुर का रास्ता कार के लिए मुनासिब नहीं? ऐसी बात नहीं है वजदान साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। पाशा साहब खुद अपनी दूसरी कार में गए हैं। मैं तो इस हवाले से कह रहा था कि जीप का अपना एक रोब और दबदबा होता है। रास्ते का जिक्र तो बस ऐसे ही निकल आया। मुझे ये बात मालूम थी कि पाशा कल शाम अपनी होंडा एकार्ड में सैयदपुर गया था, जिसका यही मतलब था कि कार के लिए वो रास्ता हर लिहाज से महफूज है। मैंने अल्लाह दिता से कहा कि मैं करोला में जाने का फैसला कर चुका हूँ, तो बस उसी में जाऊंगा। जाहिर है वो मेरे इस फैसले को टाल नहीं सकता था। उसने मुझसे इत्तफाक करते हुए कहा, बल्कि एक जरूरी अमर की तरफ तवज्जो दिलाते हुए बोला, और ग्रे हाई रूफ का क्या करना है? मज़कूरा गाड़ी इस वक्त कोठी के गैराज में खड़ी थी। मैंने कहा, उस गाड़ी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी है। फिर एक फौरी ख्याल के तहत मैंने कहा, तुम ऐसा करो अल्लाह दिता, जाकर हाई रूफ के कागजात वगैरह चेक करो। मैं इस गाड़ी की मुकम्मल तलाशी ले चुका हूँ। अल्लाह दिता ने बताया, इस गाड़ी के कागजात पूरे हैं और डैशबोर्ड के अंदर रखे हुए हैं। बात खत्म करके उसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे कह रहा हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने उसके इस अंदाज की परवाह किए बगैर जवाब दिया, मैंने रात वापसी पर नहर के मुस्लिम टाउन वाले पुल के नजदीक मिठाई की एक दुकान देखी थी। तुम इस गाड़ी को ले जाकर उस दुकान के सामने खड़ा कर दो और खुद किसी टैक्सी को बैठकर वापस आ जाना। आप गालबन अरेबियन डिलाइट का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह दिता ने कहा। मैंने कहा, हाँ, उस मिठाई की दुकान का कुछ ऐसा ही नाम था। अल्लाह दिता ने पूछा, बस हाई रूफ को अरेबियन डिलाइट के सामने छोड़कर वापस आ जाऊं? तुम हाई रूफ को वहां खड़ा कैसे करोगे? उसका दरवाजा लॉक किए बगैर दुकान के अंदर जाओगे? मैंने वजाहती लहजे में कहा। गाड़ी के कागजात और चाबियां उसके अंदर ही रहेंगी।
तुम मिठाई की इस दुकान से 2 किलोग्राम मिठाई खरीदोगे और किसी रिक्शा टैक्सी में बैठकर वापस आ जाओगे। फिर इस मिठाई पर फातिहा पढ़कर बड़े पाशा के लिए दुआ वगैरह मांग लेना। तुम इनके जनाजे में तो शिरकत नहीं कर सकोगे, इस तरह तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी। ये सब ठीक है। वो उलझनज़दा नजर से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन गाड़ी को खुला छोड़कर आने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा, जब तुम वापस आ जाओगी तो हर बात वाज़िह तौर पर समझ में आ जाएगी। सदफ इस्तजाबिया नजर से मुझे देख रही थी, लेकिन मैंने उसका इस्तजाब दूर करने के लिए कोई वजाहत ना की और ना ही अल्लाह दिता ने मुझसे मजीद कोई सवाल किया। हम लगभग 8 बजे कोठी से सैयदपुर के लिए रवाना हो गए। मैंने और सदफ ने अपना अपना बैग करोला में रख लिया। मेरे बैग में शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ मौजूद था। करोला के कागजात वगैरह मैंने चेक कर लिए थे ताकि रास्ते में किसी भी मरहले पर हमें दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अल्लाह दिता हमसे चंद लम्हे पहले निकला था और मुझे उम्मीद थी कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में वापस कोठी पहुंच जाएगा। मैंने करोला को जब गुलबर्ग 3 से निकालने के बाद बाएं जाना मोड़ा तो सदफ ने कहा, वजदान, मेरे ख्याल में तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इस रास्ते पर चलकर तो हम शादमान कॉलोनी की तरफ पहुंच जाएंगे। तुम्हें गाड़ी को दाएं तरफ मोड़कर केनाल बैंक रोड पर लेना चाहिए। मैंने इत्मीनान से ड्राइविंग जारी रखते हुए कहा, हम शादमान कॉलोनी ही की तरफ जा रहे हैं। क्या मतलब? उसे चौंक कर मुझे देखा। इस वक्त वो मेरे बराबर में पैसेंजर सीट पर बैठी थी। क्या हम मामू की तरफ नहीं जा रहे? उसने इस्तफसार किया। मैंने कतियत से कहा, बिल्कुल नहीं। फिर? उसकी हैरत दो चंद होगी। मैंने कहा, हम फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी में जा रहे हैं। वहां क्यों जा रहे हैं? बस ऐसे ही। क्या तुम्हें वहां जाने में कोई एतराज है? नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा? वो कंधे उचकाते हुए बोली। मैंने उसकी उलझन को दूर करते हुए कहा, दरअसल मैं एक नजर उस कोठी का तनकीदी जायजा लेना चाहता हूँ। पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही मैं सैयदपुर जाऊंगा। पता नहीं फिर कभी उस तरफ आने का मौका मिले भी या ना मिले। तुम आज सुबह ही से कोई खास खोई खोई बातें कर रहे हो। वो विंड स्क्रीन के पार देखते हुए बोली, थोड़ी देर पहले तुमने अल्लाह दिता से भी ग्रे हाईरूफ के हवाले से जो कुछ डिस्कस किया है उससे भी मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, पल्ले पड़ भी कैसे सकता है? तुमने मेरी बातों को खोई खोई का टाइटल दे दिया है। खोई हुई चीज को पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तुम्हें अगर मेरी बात का जवाब नहीं देना तो ना दो, लेकिन फलसफियाना वजाहतों की क्या जरूरत है? वो हफगी अमीज लहजे में बोली। ऐसी बात नहीं है सदफ, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। फाजलिया कॉलोनी वाली कोठी में जाने का सबब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाईरूफ को मिठाई वाली दुकान के सामने मैं इसलिए छुड़वाना चाहता हूँ कि वहां से उस गाड़ी में हम सफर करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो वजदान? वो ऐसे उछली जैसे सीट में अचानक कोई स्प्रिंग नमूदार हो गया हो। मैंने पूरी संजीदगी से अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना। ग्रे हाईरूफ हमारे दुश्मनों की मलकियत है। सदफ ने दलील दी। इस गाड़ी में सफर करना हमारे लिए कोई नई मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। कोई इंतहाई खतरनाक मुजरम जिसकी पूरे शहर में तलाश जारी हो, अगर वो थाने के सामने वाली बिल्डिंग में पनाह गजीन हो जाए तो पुलिस का बाप भी उसे ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि पुलिस से छुपने फिरने वाला मुजरम उसी के साए में आराम कर रहा है। बाज मामलात में अमूमी सोच और अवामी नफ्सियात बहुत अहम किरदार अदा करती है। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए कहा, मेरे ख्याल में हम ग्रे हाई रूफ में ज्यादा हिफाजत के साथ सफर करेंगे। गाड़ी के कागजात मुकम्मल हैं, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, इसलिए कानून की तरफ से मुझे मुकम्मल बेफिक्री है। और जहां तक दुश्मनों का सवाल है तो भाई दुश्मन तो दुश्मन होता है। वो तो आधी रात को भी दीवार फांद कर घर में घुसाता है और दुश्मनों से निपटना मुझे खूब आता है। वो मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनती रही और फिर बोली, अगर मैं तुम्हारी बात से मुकम्मल इत्तफाक कर भी लूं तो मुझे ये बताओ कि इस मकसद के लिए इतना लंबा चौड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी? हम पाशा अंकल की कोठी से भी उस हाई रूफ में बैठकर जा सकते थे। हाँ, ऐसा किया जा सकता था, मैंने तायदी अंदाज में कहा, लेकिन मैंने दानस्ता नहीं किया। अब खुद ही ये भी बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैंने करोला को शाहजमाल रोड पर डालते हुए कहा, मैं चाहता हूँ अल्लाह दिता वगैरह हाई रूफ के हवाले से बिल्कुल मुतमईन रहें। वो यही समझे कि दुश्मनों की गाड़ी से निजात मिल गई है, इस तरह उन्हें ज़हनी सुकून हासिल रहेगा। मैं अपनी सारी जिंदगी गैर मामूली हालात से गुजरता रहा हूँ और गुजर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम सैयदपुर के रास्ते में किस वक्त किस किस्म की सूरत हाल से मेरा वास्ता पड़ जाए। मैं चल लम्हे के लिए रुका, फिर कहा, सदफ, एक बात मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर बता दूं कि मैं अब वापस फरीद पाशा के पास नहीं आऊंगा। मेरी वजह से उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है
آئندہ بھی اس کے دشمنوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ میں ایک دشمندار شخص ہوں، مجھے اپنے مخلص اور خیرخواہ دوستوں سے فاصلہ رکھنا چاہیے، کہیں وہ لوگ میرے پاؤں سے بندھے بگولوں کے چکر میں نہ آ جائیں۔ میں تو دہکتے ہوئے الاؤ کی لپٹوں میں محو سفر ہوں، اور میرے ماحول کی تپش کسی بھی شخص کو بری طرح جھلسا سکتی ہے۔ تو تم سید پور محض اس لیے جا رہے ہو کہ پاشا انکل کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر سکو؟ صفدر نے گمبھیر آواز میں کہا۔ اس کے بعد تم اپنا راستہ الگ کر لو گے؟ ہاں، فی الحال تو یہی سوچا ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔